Good morning, dear students. I hope you're fine. Welcome to my channel. And before starting today's lecture, I would recommend all of you to subscribe to my channel so that you don't miss any of my videos. As far as today's topic is concerned, it is very interesting one and you're going to enjoy it a lot because it's quite humorous. So the lesson number 6 we are going to start today, and the title is The Man Who Was a Hospital. And the writer is Jerome K. Jerome, and he was a humorist. He always liked to write humorous stories. He is known to be a story writer, and as we have discussed in the earlier story, that humorous writers are the writers who like to write on very little subjects in a way that they can magnify them, so they deal a very little and very ordinary topic in a very serious way as if it is a very big issue. So this is how they create humor and they create comic effect, but at the same time they are in habit of creating a lot of suspense as if they are dealing a very serious topic. The problem of this story or the problem under discussion is very little, and while reading you will also feel that we all suffer from these problems. So without wasting any time, let's start with the reading and then I will explain it, and I will also give translation. So it was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading Patient Liver Pill Circular, in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. So from this reading we can know that the राइटर हमें बताता है कि वो एक दिन बैठ के एक ऐसा सर्कुलर पढ़ा था, एक ऐसा पैम्फलेट पढ़ा था जिसके ऊपर लिवर डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, और सडनली उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे जितने भी सिम्टम्स पाए जाते हैं लिवर डिजीज़ में वो सब के सब राइटर को उसकी बॉडी में हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहा है. हम सब लोग जब कभी हमें आपने शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब थोड़ा सा आपको हेडेक होता है या कोई प्रॉब्लम होता है आपकी बॉडी में, तो आजकल हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से गूगल पे जाएं और देखें सडन हेडेक, सडन पेन इन द चेस्ट, सडन पेन इन द राइट आर्म, इस तरह की चीज़ें हम सर्च करते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास एक्सेस है बहुत ज़्यादा इंटरनेट की और हम गूगल पे हर चीज़ का आंसर ढूंढ सकते हैं. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम वो चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जितना भी नॉलेज हमारे सामने है वो हमारे ऊपर फिट आता है या वो हमसे रिलेटेड है, बिकॉज इट इज़ अ सी ऑफ ओशन ऑफ नॉलेज. सो नॉट एवरीथिंग इज़ अबाउट अस, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ है और इसके सिम्टम्स, हमें जो प्रॉब्लम है इसके सिम्टम्स इस बीमारी से मिलते हैं, तो माइट भी गॉड फॉरबिड हमें ये बीमारी हो सकती है. सो सेम वॉज द केस विद द राइटर, जो हमें बताना चाहता है कि वो जब भी किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ता है ही फील्स एज इफ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़. It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I'm suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with the sensations that I have ever felt. Same thing जो मैंने आपको already explain की है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हमेशा जब भी वो किसी बीमारी के बारे में पढ़ता है, इवन कोई मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता है या देखता है, तो जितने भी सफरिंग पेशेंट्स होते हैं, जो उनके जो निशानियाँ होती हैं उस बीमारी की, वो सब की सब उसको लगता है उसके अंदर है और हमेशा से उसको लगता है कि वो उसी बीमारी से गुजरा है, सब की सब बीमारियाँ उसको लाहिक हो गई हैं. I remember going to British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. एक दफ़ा उसको बुखार हो जाता है तो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम जाता है, वहाँ पे कुछ मेडिकल सेक्शन होता है बुक्स का, वहाँ जाके देखता है इस बीमारी का इलाज और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है. I got down the book and read all that I came to read, and then in an unthinking moment I idly
turned the leaves and began to indolently study disease. Generally, I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge. I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got. Okay. अब यहाँ पे वो हमें ये बताता है कि जब मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम का रुख किया और मैंने उस बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सफ़ा पलट रहा हूँ, पेजेस पलट रहा हूँ, लीव्स को पलटा रहा हूँ, तो मुझे उस बीमारी के बारे में पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे वो सब के सब डिस्कम्फर्ट और वो सब जो सिम्टम्स थे या तकालीफ थी, वो सब मुझे लाहिक है। और मुझे अचानक से मेरे पे खौफ तारी हो जाता है, एक अजीब सा खौफ और हरास में मैं मुब्तला हो जाता हूँ। अभी मैंने उसकी हाफ़ लिस्ट भी नहीं पढ़ी होती, उसके सिम्टम्स की, जो सबसे पहले सिम्टम्स जो नज़र आना शुरू होते हैं बीमारी के, तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वाकई शायद उनमें से कुछ सिम्टम्स मेरे में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं, मुझे फ़ील होना शुरू हो गए हैं। I sat for a while frozen with horror, and then in the listlessness of despair I again turned over the pages. Suddenly he got afraid कि मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी हो गई है, और फिर अचानक से वो मायूस हो जाता है और फिर वो सफ़ा पलट देता है। Excuse me. Then he reads about typhoid fever, read the symptoms. टाइफाइड के बारे में पढ़ता है, उसके सिम्टम्स देखता है, और फिर उसको पता चलता है कि I had typhoid fever, must have had it for months without knowing it. जब वो इसके सिम्टम्स देखता है तो ज़ाहिर है उसमें से 2-3 उसको हुए होंगे लास्ट फ्यू मंथ से, तो उसको लगता है कि मुझे तो, वो ये अज्यूम कर लेता है कि मुझे काफ़ी महीनों से टाइफाइड है। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, फिर वो ये सोचता है ओके टाइफाइड भी है मुझे, फीवर भी है, और क्या हो सकता है। फिर वो एक और पेज खोलता है, सेंट वाइटस डांस फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे वो बीमारी भी है। बहुत ही स्ट्रेंज साउंडिंग बीमारियाँ जो पढ़ा होता है वो भी वो ज्यूम कर लेता है कि मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस एंड डिटर्मिन्ड टू सिफ्ट इट टू द बॉटम, एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली। फिर वो क्या करता है, अल्फ़ाबेटिकली A to Z तक देखता है कि कौन कौन सी बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियों के नाम A to Z से स्टार्ट होते हैं वो उन सब के बारे में पढ़ता है। Read up again and learned that I was sickening of it and that the acute stage would commence it in about another fortnight. acute stage होती है जो बहुत शदीद और अचानक से बीमारी हो जाती है। तो वो कहता है कि उस बीमारी को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद अगले 10-15 दिन में मुझे ये बीमारी भी हो जाएगी। ब्राइट डिजीज़, आई वॉज रिलीव टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। मतलब अब ऐसा लगता है कि उसको ही इज़ फीलिंग प्राउड कि मुझे ये सारी बीमारियाँ हैं, बिकॉज इट इज़ सच अकॉर्डिंग टू हिम उसको इतनी सारी बीमारियाँ हैं, तो वो बहुत एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है मेडिकल साइंस में। लेकिन ये भी यहाँ पे वो ह्यूमर क्रिएट करना चाह रहा है कि एक्चुअली आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे इतनी सारी बीमारियाँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड कि मुझे इस तरह से मेरी मेडिकल सिचुएशन इतनी ख़राब है, मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। कोलरा आई हैड विद स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिप्थेरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, यानी इस तरह की बीमारियाँ जो कोलरा और डिप्थेरिया, वो कहता है मुझे लगता है शायद मैं इनके साथ ही पैदा हुआ हूँ। I plodded consciously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was a housemaid's knee. वो सारी बीमारियाँ देखता है कि मुझे तो स्टार्टिंग फ्रॉम A to C आई हैव ऑल ऑफ दोज डिजीज़, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही बीमारी नहीं है, वो एक आमतौर पे जो घुटनों का दर्द होता है वो नहीं है। I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. ओके, नाउ इट इज़ क्वाइट अ फ़नी फैक्ट कि उदास होने की बजाय, खुश होने की बजाय वो उदास हो जाता है कि मुझे ये बीमारी क्यों नहीं है, व्हेन आई हैव सो मैनी डिजीज़ेस, सो व्हाई नॉट हैव दिस वन टू, व्हाई हैड नॉट आई गॉट हाउसमेट्स नी, व्हाई दिस इनवेरियस रेजर्वेशन, ये क्यों नहीं है मुझे, ये क्यों रहेगी, ये किस तरह से बच गई। आफ्टर अ वाइल हाउ एवर लेस ग्रैस्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड, कि थोड़ी देर के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आई रिफ्लेक्टेड दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मैरिडी इन द फार्माकोलॉजी मेडिसिन की साइंस होती है, एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश एंड डिटर्मिन्ड टू डू विदाउट हाउसमेट्स। नहीं कहे, उसने सोचा कि मैं सब्र शुक्र कर लेता हूँ और ठीक है, इट्स फाइन इफ़ आई हैव टू लिव विदाउट दिस डिजीज़, आई कैन लिव ऑन, इसके बगैर भी मैं गुजारा कर सकता हूँ, अगर ये मुझे बीमारी नहीं भी है तो इट्स ओके, लाइफ इज़ नॉट सो पैथेटिक।
Gout in its most malignant stage, it would appear had seized me without any being aware of it. ये भी बीमारी है उसको. And zymosis I had evidently been suffering with from boyhood. बचपन से ही मुझे zymosis की बीमारी है. बहुत सारी बीमारियाँ जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, अजीबो-गरीब किस्म की, उसको फ़ील होता है उनके बारे में पढ़ के कि शायद ये मुझे काफ़ी अरसे से लायक है. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with me. इसके अलावा मेरे पास मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतना कुछ पढ़ने के बाद उसको ये रियलाइज़ होता. I sat and pondered. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Medical students के लिए I will be a very interesting subject to study on. they would have no need to walk the hospital. जगह जगह उनको हॉस्पिटल्स नहीं जाना पड़ेगा अगर उनको प्रैक्टिस करनी होगी मेरी बॉडी पे एज अ पेशेंट, एज अ रिसर्च सैम्पल मुझे वो यूज़ कर सकते हैं. इफ़ दे हैड मी आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ. वो कहता है कि मैं तो खुद एक हॉस्पिटल हूँ, माई सेल्फ. क्योंकि मुझ में हर तरह की बीमारियाँ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z. आई हैव ऑल द डिजीज़ेज़. So I can be a very interesting topic for the medical students who want to do research in medical science. So I will be a very interesting subject and as a research sample for them. So here we're gonna stop, and because we have discussed most of this lesson, and now it's time for you to read this lesson and take your notes and ask me if you wanna ask something which is difficult for you. And the questions for your assignments are, you only have one question for today, that is your question number 1. What disease the writer did not have? What disease the writer did not have? And चलें एक और क्वेश्चन भी आपको दे देती हूँ. Your question number 2 is, why the man called himself a hospital? Why the man called himself a hospital? Because there should be 2 questions at least, so that you can learn, you can read, and you will understand the main thing. While you will be finding answers, you will get to know the whole story. So that is all for today, and we will meet tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.